یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ جناب کو مذاق اڑایا جائے اور پاکستان کی جاگ رسائی بھی کروائی. جا کے جو لیڈران ہیں وہ جناب جا کے اچھی نیند لے رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اس نے آپ کو بھی نقصان پہنچایا, اپنی پارٹی کو بھی نقصان پہنچایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 27 نومبر ہے اور انقلاب جو آ رہا تھا اور فائنل کال جو پی ڈی آئی کی طرف سے دی گئی تھی کافی زیادہ فساد پیدا کرنے کے بعد, جناب ملک میں فساد پیدا کرنے کے بعد, ہیجانی کیفیت برپا کرنے کے بعد, پورے کا پورا مجمع جس میں 90% لوگ خیبر پختونخوا سے تشریف لائے تھے اور وہ تشریف بھی اپنی نئی لیڈر جن کا نام بشرا بی بی عرف پنکی بیرنی ہے ان کے مداح بن کے, ان کے پیروکار بن کے اور مرشد پاک کو جیل سے نکلوانے کے لیے آئے ہوئے لوگ جناب واپس چلے گئے ہیں. اور واپس بھی ایسے اہتمام کے ساتھ گئے ہیں کہ جناب سارے لوگوں نے کناں نو ہاتھ لا گیا کہ بھائی کناں نو ہاتھ لایا اس تو ہیں کہ یار یہ تو جتنا بولتے ہیں وہ اس کا 10% بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جو ہمارا یہ انقلابی مارچ ہے یہ بغیر فساد کی ہوتا ہے, لیکن کنٹینروں سے چڑھے ہوئے ڈنڈے لے کے جناب پن توڑ کر کے, لیکن مانتے پھر بھی نہیں ہیں. لیکن ایسا ہوا ہے بھائی کہ سارے کے سارے چلے گئے ہیں. رات کے جب ان کا علاج ہوا ہے ہاسپٹل میں ساروں کا, ڈاکٹر آگے تھے, ڈاکٹر کوئی پنجاب سے آئے ہوئے تھے گاڑیاں بھر کے, کوئی ڈاکٹر جناب اسلام آباد سے بھی تھے کافی زیادہ, اور جو ایم ایس تھا وہ پہلے ڈھیل دی رکھی اس نے اور اٹک کا پل کراس کرا دیا, ورنہ ایم ایس اسی ٹائم ہی ٹریٹمنٹ کر لیتا تو یہ اٹک کا پل بھی کراس نہ کرتے. بہرحال یہ بھی ہمارے پاکستانی دوست ہیں, پاکستانی ہیں, لیکن بس تھوڑے سے بٹکے ہوئے. ابھی میں آج آپ کو اسلام آباد کی صورتحال دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں جناب انقلاب جو آ رہا تھا اس انقلابی مارچ کے بعد اے ہون لیٹسٹ جڑی صورتحال ہے اسلام آباد کی بھرا وہ دسن لگا کہ جو انقلابی کنٹینر تھا اس کی کیا صورتحال ہے. رات کو تو انقلاب جل گیا تھا اور اس کے بعد کافی ساری گاڑیاں بھی چھوڑ کے انقلابی بھاگ گئے تھے, ڈنڈے بردار گلیلوں کے ساتھ, پتھروں کے ساتھ. سیکیورٹی اداروں کو ٹف ٹائم دینے کے بعد, کچھ لوگوں کو شہید کرنے کے بعد, اور پھر بھی کہتے ہیں اسی تو پورا منع. ویسے کیسا خطرناک جناب یہ فتنہ ہے کہ اے بی بی جڑی ہے اے نے برباد کرتا بھائی. اے بشرا بی بی جڑی ہے برباد کر گئی ہے اور بشرا بی بی نے جناب بیڑا گرک کرتا ہے. کہندی سی میں تے اپنے میاں نو لے کے جانا, تسی جانا تے اگے جاؤ نہیں تے میں تے جاواں گی. اور باقاعدہ روحانی شخصیت گانوں پہ جناب ہلکے ہلکے ہاتھوں کا رقص بھی کرا رہی تھی. ہاتھ سے تسبیح پتہ نہیں آگئی سی یا نہیں, لیکن سننے میں آیا کہ ان کی انگوٹھی جو تھی وہ بھی چوری کر کے لے گئے انقلابی, بہرحال گاڑی سے نکال کے. اب انقلاب کا جو کنٹینر تھا, انقلابی کنٹینر, وہ جل گیا سی. لیکن یار مینوں افسوس اس کا بات کا ہوتا ہے کہ یار یہ ساڈے اپنے لوگ نے پتہ نہیں انہوں نے کیڑا کیڑا ہے جڑا مرنے نہیں دیتا. اب بھی آپ ان کے تجزیے سن لیں ان کے لوگوں کے, تو ایسی ایسی بات کر رہے ہیں کہ انقلاب ابھی ختم نہیں ہوا, فائنل کال ابھی ختم نہیں ہوئی, اپنے مرشد کو باہر نکال کے دم لیں گے. میں نے ابھی آپ کو یہ دکھانا ہے کہ یہ جو بھائی لوگ تھے انقلابی, یہ بھائی کتنے نے, یعنی کہ وہ تو چلے گئے نا خیر ہے, لیکن انہیں جو گڈیاں نے باقیات چھوڑ کے گئے نے کچھ, وہ مبارک باقیات اور وہ مبارک کنٹینر جس پہ فرا گوگی کی بیسٹ فرینڈ عمران خان کی بیگم ماڈرن ہوگی, ویسے پرجائی پہلوں دے میں کوئی نہیں سی, ماڈرن ہو گئی ہے. ماڈرن ایویں ہے کہ جڑا گاؤن شاؤن ہے وہی بدل گیا پرجائی دا. پرجائی دے ہاتھ چ جناب انگوٹھیاں شنگوٹیاں, ہاتھ بھی ننگے ہو گئے نے سارے دے سارے, بازو بھی ننگے کر دیندی پرجائی ہن. لیکن مبارک ہو ہمارے ایک خاص صوبہ خیبر پختونخوا کو, ان کو ماشاءاللہ ایک نئی لیڈر مل گئی ہیں
ਭਰਜਾਈ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं आ रही थी या नहीं। ये जनाब फैसल एवेन्यू की तरफ भरा मुड़न लगा ताकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਚੌਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੇ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਉਸ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 1 ਵਜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ जनाब वो उत्थे ही पिया या नहीं। मैं तो ये समझना कि इनू समझो कि जिस तरह अफगानिस्तान में रूस अपने जो अपने व्हीकल्स और अपने टैंक शैंक चले हुए छोड़ के भाग गया था, तो अभी तक अफगानिस्तान में उनकी जगह जगह पे जनाब वो पड़े हुए नजर आते हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि शायद इनकलाबी लीडर भी अभी तक दे पिया होएगा ताकि लोग उस इनकलाबी कंटेनर उधर पड़ा होगा, तो इनकलाबी कंटेनर को लोग देख के कुछ सबक सीखें कि भाईजान काला जादू तो जल गया सारे का सारा। भाईजान तुहानू पता कि जो कौए एक कौआ बीमार हो जाए तो सारे कौए इकट्ठे होके आ जाते हैं और काएं 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 करते ही रहते हैं जिन्नी देर तक उन्होंने खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कौए ने जनाब दिमाग खाया होंगे। इस तरह जनाब इनकलाब जो कौआ इनकलाब ये मैंने लगता है कि बर्बाद हो गया और मुल्क का भी बराबर में बकायदा सारी दुनिया च जागरसाई करने तो बाद, बंदे शहीद करने तो बाद, झूठ बोलने तो बाद कि साढ़े बहुत ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं या हलाक हो गए हैं, वो भी पाकिस्तानी ने। लेकिन बहरहाल ऐसी इस खुश नहीं होना, ये रोना मैनू आ रहा है, इस वास्ते परेशानी है। आंसू गैस खा खा के 2 दिन जलील होंगे रह गए। लेकिन भाईजान फिलहाल इनकलाब फाइनल कॉल इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा से 90% लोग आ गए थे। पंजाब वैसे कोई नहीं आया। उन्हें कहा भाई असी कोई नहीं आना। हमाद अदर बाद च आने की कोशिश कर रहा था कि शायद मेरी टिकट मैंने मिल जाए, मैंने लगता उन्हें टिकट भी नहीं मिलनी। और बुशरा बीबी ने जनाब तकरीर तुसी सुन ली है, बुशरा बीबी की जनाब चेक किया फिर बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तरह की आवाज़ निकाल के और ऐसी खतरनाक और नबी पाक सल्लम पे दरूद भी एंड में जोर से पढ़ के और इस्लामिक टच दे के और गानों पे हाथ हिला के लोगों को बर्बाद करके फसाद पैदा करके बगैर किसी हासिल असूल के गायब भाग गए हैं। और जनाब सुना है कि मानसहरा में बरामद हुए, मानसहरा में जाके छुप गए रात के ये लोग। ये तेरा जेडे एक इन्हां दी मुर्शदा और मुर्शदा दे नाल जनाब जेडे होर लोग सन अली अमीन गंडापुर दे नाल जनाब उमर अयूब डिक्टेटर दा नवासा, ये सारे लोग ए कंटेनर बहरहाल देखो जनाब चुक लिते गए ने। ए जनाब काफी ज्यादा गंद पाण तो बाद सड़कां ते इत्थे फसाद पैदा करन तो बाद जेडे इनकलाबी लोग सन जाली किस्म दे भरा इन्हां नूं समझ नहीं आउंदी, इन्हां नूं समझाईदा लेकिन समझदे नहीं। ए देखो जनाब ए रोड खुल चुका है और इनकलाबी तो कोई नज़र नहीं आ रहा मैनू। बहरहाल मैं वेखना चाहना कि वो गड्डियां कितने भज गई हैं छड्ड के। मैं लगता है लोगों ने गड्डियां भी उन्होंने लै गए या बाद च आ के लै गए। जनाब ये आप देख लें, ये वो रोड था बदकिस्मत रोड। इस पूरे रोड पे इन्होंने जनाब इनकलाब पैदा किया था। वो इनकलाब पैदा होते ही यहाँ जनाब मर गया और सारे दे सारे जनाब इनकलाब छड्ड के और इनकलाबी कंटेनर जला के और बुशरा बीबी को अपना लीडर बना के और बुशरा बीबी ने इमरान खान का बेड़ा गर्क करके पार्टी का बेड़ा गर्क करके नए मुकदमात अपने पे बन जाने। ये सारे स्यापा पान तो बाद बिल्कुल भज गए ने रात जिमें ऑपरेशन रात हुआ जनाब सारे दौड़ गए ने। और ये तो कहते थे कि असं दौड़ांगे नहीं। और अली अमीन गंडापुर जनाब इन्नियां बड़कां भाई असी हुण ऐ कर देंगे वो कर देंगे, बड़कां सारियां दी सारियां निकल गई। इसीलिए मैं कहता हूँ जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है भाजी। मान लो जिन्ना शोर पाते ने वो 10% भी कोई नहीं करके गए, उल्टा अपना नुकसान करा के अपनी पार्टी को ख़राब करके नए मुकदमात बना के पाकिस्तानियों को जलील करके पाकिस्तान का नाम बदनाम करके अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान का करने के बाद भाईजान भज भुज के जाके उत्थे जाके सुते पे ने। मानसहरा पता चल रहा है कि बरामद होए ने और हुणे गिरफ्तारी होनी है बुशरा बीबी की। देखो किवें गिरफ्तारी होंदी है, शायद अली अमीन ते बच जाए क्योंकि वो तो पहले ही भजना चाहता सी पेशाब के बहाने। ए देखो भाई ए कंटेनर एक दूसरे के उत्ते चढ़े पे ने और ए डी चौक की तरफ मैं जा रहा हूँ। ए हुण प्यारा सा मेरा डी चौक पता नहीं किस हाल में है।
मैं आपको दिखाया लो जी है इनकलाबी कंटेनर अग लगी पई मैं उत्थों दी आना भाई मैं उत्थों दी आना तुहानूं मैं दिखाना है ये इनकलाबी कंटेनर जिहड़ा है इहदा बेड़ा तरिया पिया और उन्होंने चुक के लैके जा रहे हैं इनकलाबी कंटेनर को। मैं इसीलिए कहता हूँ भाई कि इनकलाब ऐसे पाकिस्तान के अंदर इनकलाब नहीं आ सकता। हमारे इदारे बड़े मजबूत हैं, तुहाडी मेहरबानी है पंगे ना लो, लेकिन तुसीं नहीं हटदे। तुसीं साडे फौज दे नाल लड़ना चाहते जे, एस्टैबलिशमेंट नाल लड़ना चाहते जे, आज़ादी लेना चाहते जे। ए जनाब चाइना चौक के बाद ये वाला एरिया है, इसके बाद फिर आगे डी चौक है। बस इतने तक ही ना लोगों ने केक आई सी और ये देखें अभी भी रेंजर वाले इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई इनकलाबी इतने भुल गया हो रास्ता, लेकिन भाजी कोई नहीं, फिलहाल सारा सुकून है। और मैं उस साइड तो घूम के ना तुहानू जरा ए देखो प्रॉपर रास्ता बंद है, यहाँ तक खुला हुआ है। स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है जो रात को मैं अक्सर आपको दिखाता था। तो तुसी वो एक चीज़ वेख लीए फिर भराओ कि वो जड़ा इनकलाब है, इनकलाबी जड़ा कंटेनर है वो जनाब अग लगी पई, उन्होंने जल जुल के राख कर दिता है। मैसेज चला गया कि भाई इस तरह ही सारा कुछ जल जाना है, ਤੁਹਾਡਾ बाज आ जाओ। लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे, हजे भी ना नहीं हटना। तुम देखियो असैम्बली च अपीयर होएगा जनाब अली अमीन गंडापुर, फिर बयान शान आएंगे, फिर साडे जिहड़े दोस्त ने पीटीआई के यूट्यूबर्स इंशाल्लाह वो काम नूं चुक के रखणगे फिर। लेकिन बर्बाद कर के बेड़ा गर्क करके पाकिस्तान का पट्टा बिठा के दुनिया में जग रसाई करके सारी बर्बादी करके कुट खा के सारे दे सारे जनाब भज गए ने। और मैनू लगदा इन्होंने ऐलान भी करता है कि साडा इनकलाब फिलहाल खत्म होया। फाइनल कॉल च की हासिल हसूल होया तुसीं खुद दस दो, कख भी नहीं लभ्या भाई। मैनू दसो कि मुर्शद पाक भी उवें दे अंदर, बुशरा बीबी बहरहाल अपना जनाब मैनू लगदा है भाई ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ, बैरूनी खुफिया हथ छुपे हुए हथ, उन्होंने जनाब तकवीयत पहुंचा के उन्होंने मुताबिक फसाद करा के और भज भुज के हो गई जनाब, ओ पिया जांदा ही जनाब, वो सारे भज गए ने। और अभी मैं भी हैरान हूँ कि यार ये फाइनल कॉल इनकलाब और हम वापस नहीं आएंगे, धरने में जाके बैठेंगे। मैं हैरान हूँ कि ये जो धरना भाई अभी देखो इन्होंने सारे कंटेनर भी पुट्ठे कर गए सन स्टेट लाइफ की बिल्डिंग के बैक साइड से। आप वो जो इनकलाबी है ना कंटेनर भाई वो चुकिया जा रहा है। जल्दी ना मैं जावा ताकि तुहानू दिखावा इनकलाबी कंटेनर सड़ गया है, बल्कि इनकलाब भी सड़ गया है। मैं वो तुहानू सड़िया हुआ इनकलाब दिखा दिया। भाई पाकिस्तानियों खुदा दा वास्ता है, बाज आ जाओ, ना पंगे करो। अरबों रुपए का नुकसान करके होना तो ये चाहिए है, हुकूमत को ये करना चाहिए कि ये जो मुल्क में अरबों रुपए का नुकसान हुआ है ना भाई जान, ये 2-4 दिनों में कुछ 8-10 अरब रुपए का तो हो गया। ए देखो प्रेस क्लब वाले पास भी डीएसएन जी वावा सारी लगी है, पता नहीं कोई ना कोई आन लगा आगे उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दसना है कि भाईजान सारा बर्बाद करके नहीं, और लाजमी बताएंगे भाई कि कितना पाकिस्तान को इन दिनों में इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैं थल्ले तो जाना उस तो बाद घूम घम के ना मैं कोशिश करना वो जो मेरा प्यारा इनकलाब सड़िया पिया ना वो मैं तुहानू दिखाना कि इनकलाब तो सड़ गया, ਉਹਦੀ ਕੀ सूरत हाल है। ਉਹਨੂੰ खिंच के लैके जा रहे हैं सड़े हुए ਨੂੰ भाई। इस तो पहले कोई लै जान मैं भज जावां जरा भजावां गड्डी ते किस तरीके नाल सड़िया होया इनकलाब मैं फड़ ला ते बड़ी जबरदस्त गल हो जाएगी। तुहानू दिखा दांगा कि ए देखो तारां थल्ले भी पईयां ने, बेड़ा गर्क कीता होया है मुल्क दा पट्टा बिठा के इस्लामाबाद नूं गंदा करके गलाजत फैला के। इनकलाब जनाब मैनूं लगदा है किहड़ा इनकलाब है, मुरशद दे उत्ते बेड़ा उन्होंने गर्क करके उहदा ते बुशरा बीबी जनाब भज गई है। अच्छा बुशरा बीबी ने ना वैसे इमरान खान का पट्ठा बिठाता, मैं तुहानूं ये दस्सां चंगी भली पार्टी च वो थोड़ी जी लगती सी कि यार पार्टी चलेगी अगे। मैनूं लगदा भरजाई ने ना जनाब आखिरी किल जेहड़ा ना वड्डा सारा लोहे दा वो ठोकिया ते आ जांदी पई जनाब। हुण मैं जरा जल्दी ना पहुंच जावां कि इनकलाब जिहड़ा सड़िया पिया ना वो चुकिया जा रहा है। वो सड़िया इनकलाब तुहानूं मैं दिखाना बहुत ज़रूरी है। और मेरी कोशिश है कि कितनी गाड़ियां इनकलाब वाले हमारे दोस्त भाई छोड़ के गए हैं, भटके हुए हैं, कोई बात नहीं, सही हो जाएंगे। जो लोग भटके होते हैं वो उनको अल्लाह ताला हिदायत भी दे देते हैं। लेकिन जब काले जादूगर की सुपरविजन हो ना भाईजान फिर ज़रा मुश्किल काम है। और मुर्शद पाक ते जनाब अंदरों कह भी रहा है कि संजानी जाके कर लो एहतजाज, उत्थे जाके बह जाओ। उन्हें ठीक मेरे ख्याल च कहा सी, लेकिन जनाब है जी औरत है ये नहीं मनी।
ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ अपनी पार्टी का भी हो जाती पई जनाब। वो इनकलाब जो है भाई वो मैंने बिल्कुल अभी जाके उसको चले हुए इनकलाब को पकड़ता हूँ कि कितने चल रहे हैं, तेनू की होया भाई, तू क्यों एवें रुल गया मेरी दोस्त, तू ते बड़े इनकलाबी पैदा करी पिया से नवे नवे इनकलाबी इस इनकलाबी कंटेनर ते चढ़े पे सन भाई, छाला मारी पे सन, कई ते अफगानी भी सन, अफगानियां ने बेड़ा गर्क करता साडा इत्थे आके, और सारे नहीं खैर कुछ जिहड़े शर्पसंद ने बहुत अच्छे भी साडे भरा ने, लेकिन ज्यादातर लोग भाईजान बहुत ही ए देखो भाई इनकलाब ए लो ए हुण तुहानू मैं दिखाने लगा जनाब, ए वो रोड है देख लें, ये वो रोड है जहाँ पे इनकलाबियों ने जनाब जाली किस्म के इनकलाबियों का जो इनकलाब का जो जिस पे विराजमान थे आज जलिया पिया सामने वेख लो भाई, पता नहीं मैनू कैमरा बंद ना करना पै जाए, सख्ती बहुत ज्यादा है माजरत चाहता हूँ। आ देखो सामने वेख लो भाई, ए जी इनकलाब, ए इनकलाब जल चुका है नाजरीन, आप देखें जला हुआ इनकलाब का जो कंटेनर है वो जल चुका है, उन्होंने चुकिया जा रहा है, रास्ता बंद है भाई। चलो मैं इधरों जाके तो मैं सड़िया होया इनकलाबी कंटेनर दिखाना चाहता हूँ, और लोग तो बड़े ज़ारो कतार रोने लग गए हैं भाईजान, रो रहे ने की हो गया साडा पट्ठा बह गया भाई। मैं थोड़े जाके गड्डी करना किस तरीके ना, तो मैं कोशिश करना कि तुहानू वीडियो बना के दवा दिखा। इनकलाब सड़ गया भाई, बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त सड़े हुए इनकलाब के पास खड़े हैं, मैं भी उत्ते पहुंच जाना भाई, तुहानू दिखा दा। ये बेड़ा गर्क जिहड़ा होया पिया पूरे इस्लामाबाद च पट्ठा बिठाने तो बाद हो जलिया पिया इनकलाब। ये आप देख लें जी, ये है वो इनकलाब, ये जल चुका है, और गौर ना देख लो इन भाई, देखो इन गौर ना, ये देखें ये है वो इनकलाबी कंटेनर। पीछे हो जाओ, ये देख लें जी सख्ती भी हो रही है, और ये देखें आप इनकलाब जल चुका है सारे का सारा, बल्कि बढ़ चुका है, और इनकलाबी सारे भाग चुके हैं। ये देखें जनाजा उठाया जा रहा है इनकलाब का, अभी आप देखें कि ये जो जनाजा है इनकलाब का ये उठाया जा रहा है, और ये वही बदकिस्मत कंटेनर था जिस पे बुशरा बीबी जैसी खातून ने आके जनाब तमदरुद किया, और मुझे लगता है ये काले जादू का असर था, जिसकी वजह से आप देखें इनकलाब सारे का सारा जल गया। ये जनाब देखें आप गौर से, इसका जनाजा उठाया जा रहा है और बड़े एहतमाम के साथ उठाया जा रहा है। मैंने कहा आपको मैं दिखा दूं, अब मेरे ख्याल में यहाँ रुकना कम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ देखें लोगों का भी बड़ी तादाद है जो देख रहे हैं, और ये जो मुल्क में हिजानी कैफियत बर्पा करने के बाद अरबों रुपया का नुकसान करवाने के बाद इनकलाब के नाम पे लोगों को फुसला के यहाँ पे लाने के बाद सारा कुछ बर्बाद करने के बाद हो जाते पे जनाब तेज, मैनू लगता मैं चला जावा तो बेहतर है। देखो जनाब इनकलाब लटक रहा है, फ़िलहाल इनकलाबी जो कंटेनर है इसको लटकाया जा रहा है, और ये खुशी की बात नहीं है भाई, ये दुख की बात है कि ये हमारे ही लोग हैं, और ये जो हमारे भटके हुए लोग हैं उनको कम अज़ कम इस तरह मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत बर्पा नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये कोई खुशी की बात नहीं है कि जनाब को मजाक उड़ाया जाए, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ये जो भटके हुए लोग हैं इन्होंने जनाब बेड़ा गर्क कर दिया था, और पाकिस्तान की जागरसाई भी करवाई, इदारों को भी टफ़ टाइम दिया, इदारों पे पथराव, इदारों के एहलकारों को शहीद किया, और उसके बाद ये लोग खुद जाके जो लीडरान हैं वो जनाब जाके अच्छी नींद ले रहे हैं, गरम यानी कि लिहाफ लेके, और जो लोग यहाँ पे शहीद हुए और जिन लोगों के बच्चों ने जनाब यहाँ पे भटके हुए जो हमारे पाकिस्तानी हैं जनाब वो तो चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ख्मी होकर लोग भी गए हैं। अब आप देखें कि ये जो इनकलाब के नाम से फसाद की कॉल थी, मुझे लगता है ये कोई फ़ाइनल कॉल तो नहीं थी, अभी फ़िलहाल वो फ़ाइनल कॉल जो है जनाब वो तो मेरे ख्याल में दफन हो चुकी है, और ये इसमें खुशी की बात नहीं है बल्कि ये इंतहाई दुख की बात है
کہ یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ لوگ بجائے کہ قانون و انصاف کے مطابق اور قانونی طور پہ اپنی جناب سزائیں لیں اور اس کے بعد قانون کے مطابق باہر نکل آئیں. زبردستی نہیں ہو سکتی کہ جناب ہر چیز زبردستی اور جلاؤ گراؤ کر کے ہی ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم یہ اتنا سارا نقصان اربوں روپے کا نقصان کرنے کے بعد یہ جو KPK سے آئے ہوئے لوگ ہمارے بھائی اور لیڈران کی وجہ سے جناب جو پٹکے ہوئے تھے اور بہلا پھسلا کے لائے گئے لوگ جو ہیں یہ ابھی واپس جا چکے ہیں اور الٹا نقصان ہی پہنچایا, اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا, اپنی پارٹی کو بھی نقصان پہنچایا. چلو میں نے یہ آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ فی الحال انقلاب جلا ہوا ہے اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ دکھ کی بات ہے کہ یہ ہمارے جو ملک کے جو لوگ ہیں ان کو بٹکے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ عدالتوں کا سامنا کرتے ہوئے جناب یہ لوگ باہر نکلیں, نہ کہ یہ جو لوگ ہیں یہ زبردستی سارا کچھ کرو. باقی تو ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ جو لوگ ان کے فالوورز ہیں جو سننا چاہتے ہیں اس طرح کی چیزیں کہ جناب ہر چیز ریالٹی اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈائلاگ بازی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. تو یہ وہ انقلاب تھا جو میں نے کہا آپ کو میں دکھا دوں. انقلاب فی الحال جناب ختم ہو چکا ہے اور اب نیا انقلاب کوئی آئے گا تو پھر وہ دیکھیں گے یہ نیا انقلاب کب آتا ہے. تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ یہ انقلابی کنٹینر کے جلنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ انقلاب سارا سڑ گیا ہے اور ملک کو بھی برباد کر کے دنیا میں ملک کی جگ رسائی کر کے دشمن ملک کا میڈیا اس پہ جناب لان تان کر رہا تھا ہمیں, اور اب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جتنا بھی نقصان ہوا سارے کا سارا بھائی نہ دے پاؤ. ٹھیک ہے جی, کیونکہ میں نہیں یہ بات کرنا چاہ رہا کہ کوئی خوشی نہیں ہے, یہ انتہائی دکھ کی بات ہے ہمارے لیے. یہ دیکھیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جناب یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ یہ ہوش کے ناخن لیں گے لوگ اور اداروں پہ حملے اور سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کرنے کے در پہ کیا یہ پاکستانی ہیں, کیا یہ ایک مسلمان ہیں؟ ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے جناب, یعنی کہ منہ میں رام رام اور دل میں جناب ان کے پتہ نہیں کیا چلتا ہے. تو مجھے اجازت دیں, انقلاب لٹک گیا ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.